السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر اجلاس قابل قدر افاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ اجلاس جو ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے منعقد کیا گیا ہے، مختلف مضامین کے تحت علماء کرام کے خطابات رکھے گئے ہیں۔ میرے لیے جو عنوان پیش کیا گیا کہ نوجوانوں کے لیے کیا منہج ہے، کس منہج کو نوجوان اختیار کریں اور کس طریقے سے اپنے منہج کی شناخت کریں۔ معزز حضرات، منہج کی تعلیم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دی ہے۔ جیسے ہی منہج کی بات کی جاتی ہے یا منہج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بعض کوتاہ نظر لوگوں میں اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے کہ اب منہج صرف اہل حدیث کا ہے یا منہج صرف سلفیوں کا ہے، کیونکہ منہج کی جو اصطلاح ہے وہ زیادہ تر مسلک اہل حدیث میں استعمال کی گئی ہے۔ لوگوں کو منہج کیا ہے اس کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کا منہج ہے اور وہ منہج کتاب اور سنت ہے۔ ایک مشہور حدیث جو ہم سب لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد ہے، جس میں منہج کی بنیادی حیثیت بتائی گئی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اس میں منہج بھی بتایا گیا اور منہج کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں، اور منہج سے انحراف کے نتائج بھی بتائے گئے ہیں۔ اور یہ بات کسی عام مولانا یا علامہ کی نہیں ہے، بلکہ محسن انسانیت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب جب نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہو تو اس میں سوائے سچائی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور جب نبی کے الفاظ ہیں تو ہر مسلمان کو اسی منہج کو اختیار کرنا چاہیے جس کی رہنمائی اللہ کے نبی نے کی۔ کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ اب اس حدیث کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر آپ سمجھ جائیں تو یہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ ہمارا منہج کتاب اور سنت ہے، اور اس منہج سے انحراف ہلاکت اور تباہی ہے، اور اس منہج کو تھامنا کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں لوگوں کی گمراہیوں کو تو سیدھے ہم نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہر گمراہی کا سبب کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کتاب اور سنت کو ہم تھامے رہیں اور گمراہی بھی ہمارے پاس آ جائے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو، چاہے وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا خاتون ہو یا بچہ ہو، اس کو پہلے ہی دن سے ہمیں یہ بات بتلانی چاہیے کہ اس کا منہج قرآن اور سنت ہے۔ اور الحمدللہ کسی قدر ہم یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث کا بچہ لوگوں کو کتاب اور سنت کے دلیل مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی چیز ہم کو ہماری اولاد کی گھٹی میں ڈالنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری بات
सहाबाए किराम के तरीके को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मनहज करार दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी की अमली तस्वीर और अमली ताबीर नुफूस कुद्सिया सहाबा की शक्ल में थी। इसीलिए आपने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में दाखिल होगा, और वो कौन? मैं और मेरे सहाबा के नक्श कदम पर चलने वाला रहेगा। यहां पर भी मनहज की बात की गई है। अब मुसलमानों के 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, मतलब क्या है इस चीज का? कि वो मसालिक, वो नजरियात, वो मनाहिज होंगे जो किताब और सुन्नत से हटे हुए रहेंगे। अक़वाल पर, आराओं पर, अफकार पर और नजरियात पर अमल करने वाले गिरोह रहेंगे, वो तबाह होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब लोगों को मनहज सल्फ सालेह पर चलने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, और इस हैसियत से भी कि हम अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्र अदा करें कि पहले तो अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, और उसमें हमें सही मनहज समझने की तौफीक अता फरमाया, और हम उस मनहज को मानने वाले हैं। लिहाजा अल्लाह की सबसे ज्यादा शुक्रगुजारी हम लोग बजा लाते रहें। मेरे दोस्तों, मनहज पर बड़ी मेहनत के साथ आया जाता है, लेकिन मनहज से हटना बहुत आसान बात है। मनहज पर आना सबसे मुश्किल काम है। दीन का मिलना, दीन पर चलना, सही हदीस को थामना, यह कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन इससे इन्हिराफ चुटकियों के अंदर होता है। उसकी मिसाल आप किताब और सुन्नत के जरिए से बड़े दलाइल की रोशनी में देख सकते हैं। पहली ही दलील और आखिरी दलील के तौर पर हम हजरत शैतान को ले लें कि उससे ज्यादा अल्लाह का इताअत गुजार में कोई नहीं था और मुकर्रब कोई नहीं था, लेकिन उसने अल्लाह के मनहज का इनकार कर दिया तो अल्लाह ने उसको लईन बना दिया। यह इसी तरीके से होता है। हमेशा इस शैतान की तबाही को, उसकी गुमराही को हम सामने रखें कि जो अल्लाह का मुकर्रब था वो मरदूद बना दिया गया, लईन बना दिया गया, क्योंकि उसने अल्लाह के उस मनहज को छोड़ा जो ताबेदारी का मनहज था। उसने एक सेकंड में अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री कर दी। इसीलिए मनहज बड़ी मुश्किल से मिलता है। बाद लोग हमें तानतन ये कहते हैं कि अहले हदीस की तादाद कितनी है, अहले हदीस की तादाद कितनी है। ऐसा नहीं कि अल्लाह के पास कसीर तादाद में रहने वाले जन्नत में जाएंगे। जन्नतियों की तादाद हमेशा कलील से कलील रहेगी। सारी इंसानियत जन्नत में नहीं जाएगी, सारे मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदे जन्नत के अंदर जाएंगे। जन्नतियों की तादाद हमेशा कम रहेगी, मुत्तकियों की तादाद हमेशा कम रहेगी, दीनदारों की तादाद हमें हमेशा कम नजर आएगी। और अकलियत और अक्सरियत का मसला तो जमहूरियत में पाया जाता है। हमारा दीन जमहूरी निजाम के ताबे नहीं, ये शरई निजाम के ताबे हैं। हम आमिलीन के गिरोह को पसंद करेंगे और किताब और सुन्नत पर अमल करते रहेंगे। एक और बात, जब जमाना तरक्की करता है, कौमें तरक्की करती हैं, जब वो सरबुलंदी के मेयार पर पहुंचती हैं, तो हकीकी मानों में मनहजी कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता उनके पास पाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके पास मनहज का बिगाड़ होता रहता है। कुरान ने इसकी शहादत पेश किया। फरमाया सूरह हज में, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सलात वत्तबउ शहवात, कि नस्लें आती गई, नस्लें गुजरती गई, लेकिन उन लोगों के अंदर शहवत परस्ती आम हो गई और नमाजों को छोड़ने की आदतें आती गई, और इसी तरीके से वो तबाही के दलदल में गिरते रहे। आप देखते रहे। इसके लिए बड़ी मिसालें हम लोगों को मिलती हैं। अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने फलसफे में बयान फरमाया कि कोई भी नस्ल 4 पुश्तों तक परवान चढ़ती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन नस्लों के अंदर कमजोरियां पाई जाती हैं। आबा वो अजदाद दीनदार थे, नस्लें बीतती गई, लेकिन दीन का एक नमूना उन नस्लों के अंदर बाकी रह गया, लेकिन दीनदारी उन नस्लों में बाकी नहीं रही। कहीं से भी आप इस बात को शुरू कर सकते हैं, चाहे बनो अब्बासिया हो, बनो उमैया हो, किसी भी नस्ल से आप गुफ्तगू करके देखें, लेकिन 4 नस्लों के बाद आहिस्ता आहिस्ता अफकार और नजरियात के अंदर बिगाड़ आता जाता है। ऐसा नहीं कि नस्लें बिगड़ती हैं तो हम बिगड़ने के लिए नस्लों को छोड़ दें।
हमारे लिए यह तालीम दी गई है कि हम नस्लों को दीन से वाबस्ता करें, मनहज से वाबस्ता करें, उनको बार बार मनहज की तालीम देते रहें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया, हलाक उम्मती अला यदे गिलमतिन मिन कुरैश, मेरी उम्मत की तबाही कुरैश के नौजवानों के हाथ में होगी। एक पेशिन गोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तो मरवान बिन हकम जो बादशाह था, अबू हुरैरा के सामने बैठा और ताज्जुब से पूछा कि क्या कुरैश के नौजवान कौम की तबाही के सबब बनेंगे? कहा कि हां, अगर तुमको शक हो तो मैं ये भी बता सकता हूं कि किन नौजवानों के हाथों पर इस उम्मत की तबाही होगी। ये होगा आहिस्ता आहिस्ता मनहज में कमजोरी आती रहेगी। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी नस्लों को दीन पर कायम रखें। उलमा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम को दीन पर मुस्तहकम रखे। हर उस तंजीम की जिम्मेदारी है जो दीन की बुनियादों को जानती है कि वो नौजवानों को थाम कर रखे और गुमराही से बचाने की जिद्दोजहद करते रहें। आज आहिस्ता आहिस्ता हमारी नस्लों के अंदर मनहज में कमजोरी नजर आ रही है। उनके ख्यालात बदल रहे हैं, उनके अफकार बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। मनहज की जो औसात है लाकर उसको कूजे में बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं खास तौर पर इस मौके से अपने अहले हदीस नौजवानों को चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूं कि आज आए दिन हमारे नजरियात को बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। शुकूक और शुबहात उसी तरीके से पैदा किए जा रहे हैं। किसी जमाने में खवारिज और कुछ शख्सियतों ने निकलकर इस तरीके के नजरियात को आम किया था, मशहूर किया था, और ऐसे फितनों के दौर से सहाबा का दौर भी महफूज नहीं रह सका था। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत है। कुछ लोगों की एक जमात पैदा हुई और उस जमात ने नारा बुलंद किया, सहाबा की मौजूदगी में, जलीलुल कदर सहाबा की मौजूदगी में उम्मत मुस्लिमा को अफकार, नजरियात और एतकादात से बरगश्ता करने की कोशिशें करवाई गई। उन्होंने नारा बुलंद किया, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जब यह आवाज़, इसकी सदाएं बाज़ हजरत उमर को सुनाई दी तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उम्मत मुस्लिमा को तंबीह किया, आगाह किया, खबरदार किया कि ये जो हस्बुना किताबुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, उलाइका अदाउ सुनन, ये लोग सुन्नतों के दुश्मन हैं। गली कूचों में सरेराह जहां पर भी ये नजर आए तो उनकी ज़ज्र तौबीह करो, उनको मारो और उनको उनके नजरियात से बरगश्ता करो। ये दरअसल सुन्नतों के दुश्मन हैं। आप देखें कि मनहज से इन्हिराफ हजरत उमर के दौर में किया जाने लगा, लेकिन कायद की हैसियत से हजरत उमर ने उम्मत मुस्लिमा को आगाह किया और तंबीह की कि ऐसे लोगों को किस तरीके से उन लोगों का सर्वनाश करना चाहिए। पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ उन लोगों का तदारुक करना चाहिए, दलाइल की रोशनी में, बराहीन की रोशनी में, और जहां दलाइल और बराहीन काम न कर सके वहां पर हम अपने ताकत की रोशनी में इन लोगों की सरकूबी करते रहे ताकि नौजवान नस्ल के अंदर बिगाड़ पैदा ना हो। आज हम ये देखते हैं कि हमारे नौजवान चलते चलते मीडिया की इस तबाही के जरिए से सेल्फी मनहज से इन्हिराफ करने लगे और इस मनहज पर एक सवालिया निशान लगाने लगे और नए नए कदशात और शुबहात को पैदा करके वो ये समझने लगे कि अहले हदीस तो सिर्फ आमिन बिल जहर और रफुल यदैन का नाम है और उसके अलावा कोई और चीज नहीं होती। लिहाजा आज हमारे नौजवानों में नए नए नजरियात आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और ये दिन ऐसे ही फितना परवर लोगों की है। उनमें कई किस्म के लोग हैं
जिनकी निशानदेही मैं आपके सामने करना चाहता हूं। आज हमारे नौजवानों की बड़ी आबादी, बहुत से नौजवान ऐसे लोगों की पैरवी करने लगे या ऐसे लोगों के बयानात, वाज और नसायत सुनने के आदी बन गए जिनकी टीआरपी मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी दीनी मदारिस का न रुख किया, न उलमाए किराम के सामने बैठकर ज़ानुए अदब तय किया है। इनके अपने जाती मुताला, जाती अफकार और जाती नजरियात इस तरीके से आए कि कई लोग तो गुमराह हो सकते हैं, लेकिन हमारे नौजवानों में ये नजरियात आना बड़ी ताज्जुब की बात है। कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि जब हम वाज बयान करते हैं, खुतबात देते हैं, खुद ब खुद ऐसे नौजवान निकलकर सामने आ जाते हैं और सवालात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये नजरियात के मुतहम्मिल हैं। एक वक्त की बात है कि मैं फतेह दरवाजे की मस्जिद में ऐसे ही नजरियात का रद्द कर रहा था। एक शख्स है हमारे पड़ोसी मिल्क का, जिसका नाम है मोहम्मद शेख। मोहम्मद शेख दो एक वालिद और एक बेटा किसी मसले में मेरे पास आए, गुफ्तगू किए। उन लोगों ने अपने गुफ्तगू के दौरान मुझसे कहा कि शेख आप जो है मोहम्मद शेख साहब के ऑडियो सुनिए, वो बड़ी अच्छी तौजीहात बयान कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ, पहली मर्तबा इस शख्स के नाम मैंने सुना, इसके बारे में तहकीक किया, इसके बयानात के वाकई मैंने सुना और उसके जो कमजोरियां हैं उसको मैंने हासिल करके बड़ा ताज्जुब किया। उसके नजरियात को जमा किया। उसके रद में जब मैंने खुतबा दिया तो फतेह दरवाजा जैसी मस्जिद के अंदर से खुतबे के बाद 4 नौजवान आए और सामने बैठे और उस शख्स के बारे में इस्तिफसार करना शुरू किए। कहा कि शेख आज पहली बार मालूम हो रहा है कि ये शख्स ऐसे नजरियात के मुतहम्मिल हैं, हम तो इसको सुनने के आदी हो गए हैं। अल्लाह अकबर। ये वो नौजवान हैं जो अहले हदीस मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, हमारे उलमाए किराम के साथ उठते हैं, बैठते हैं, हमारी मस्जिदों के अंदर रहते हैं, लेकिन उनके नजरियात इस तरीके के पाए जाते हैं। पता है कि ये शख्स क्या क्या बातें कहता है, इसका अकीदा क्या है, इसका मनहज क्या है। दो एक बातें इसके बारे में मैं आपके सामने कहता हूं। वो सबसे पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरिश्ता मानने का इनकार करता है और वो कहता है कि जिब्राईल अमीन रूहुल कुदूस है, रूहुल अमीन है, वो फरिश्ते नहीं है। एक आदमी ने उससे सवाल किया कि तुम्हारा उस्ताद कौन है, कुरान की ये दलाइल तुम पेश करते हो, ये दलाइल तुम कहां से याद करते हैं। वो कहता है कि आपको इसमें किस किस्म का एतराज है, मेरे उस्ताद जिब्राईल अमीन है, मैं उनसे तदरीस हासिल करता हूं, इसमें आपको क्या एतराज है। और ऐसे नजरियात के मुतहम्मिल इंसान के पैरोकार हमारे नौजवान बनते चले जा रहे हैं। सवाल यह है, इसका एक जुमला है, लेकिन इस जुमले में इसने ऐलान नबुव्वत भी कर दिया, जिसको समझने से हमारे नौजवान काफिर हैं। उसने कहा कि मेरी तरबियत जिब्राईल करते हैं। जिब्राईल वो फरिश्ते हैं अल्लाह के जो अंबिया के पास वही लेकर आते हैं। जिसने दावा किया कि जिब्राईल अमीन की मुझसे मुलाकात होती है, गोया वो दावा नबूवत कर रहा है। इसकी दलील में हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा का उस वाक़या को हम अपने जहन में रखें। जब अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, कई सहाबा अश्कबार हुए, तो फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा भी अश्कबार थी, रो रही थी। लोगों ने ताज्जुब से कहा कि फातिमा क्या तुम भी रो रही हो, तुम्हारे वालिद ने रोने से मना कर दिया, ये कैसे आंसू तुम बहा रही हो। कहने लगी कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि आज मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, मैं इससे रो रही हूं कि आज जमीन से आसमान का रिश्ता खत्म हो चुका, कि अब जिब्राईल अमीन का आना और जाना बंद हो गया। यह किस बात की दलालत करती है, यह किस बात की तरफ रहनुमाई करती है कि वो इंसान चंद जुमलों के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी नबूवत का प्रचार कर रहा है और हमारे नौजवान उसके गिरविदा बनते जा रहे हैं। इसी तरीके से
वो आदमी ये कहता है कि हिजाब क्या चीज है, हिजाब ये जो बुर्का है ये हिजाब नहीं होता, ये जो चेहरा है इसका हिजाब नहीं है। क्यों नहीं है? हिजाब में चेहरा दाखिल क्यों नहीं है? अच्छी तरीके से वो लोग जान ले कि हमारा मनहज ये बताता है औरत का चेहरा भी हिजाब करना चाहिए, क्योंकि वो फितने का महवर है और अल्लाह के नबी की जानिब से बड़े दलाइल इसमें दिए गए हैं। लेकिन एक नजरिया आजाम किया गया कि हिजाब चेहरे का नहीं होता, यह दरअसल मुनकिरीन हदीस की दलील है। यह शख्स कहता है कि देखो कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा, या उख्त हारून, ऐ हारून की बहन, ऐ हारून की बहन। खिताब इसीलिए किया कि उसको देखा होगा, जब देखा है तो फिर पर्दा कहां का है? यह किस किस्म की तौजीह उसने बयान फरमाया, यह किस किस्म की तौजीह उसने बयान फरमाया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे नौजवान उसके गिरविदा बनते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से यह आदमी यह नजरिया पेश करता है, हदीस सही का मफहूम क्या है, हदीस सही का मफहूम क्या है? आपको ताज्जुब होगा, यह नजरिया रखने वाले ऐसे अफराद हमारे हैदराबाद के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यह कहता है कि हदीस सही क्या है? हदीस सही वो है जिसकी दलील कुरान पेश कर दे, इसीलिए कि कुरान फुरकान है और कुरान कहेगा तौरात की यह बात सही है, इंजील की यह बात सही है, तो वह बात सही है, इसीलिए कि कुरान फुरकान है और वही फुरकान बताएगा कि हदीस सही क्या है। यहीं से इनकार हदीस का फितना पैदा हो जाता है और हमारे नौजवान इसके गिरविदा होते हैं। इस शख्स से मुताल्लिक चंद बातें मैंने आपके सामने रखा, चूंकि दूसरे नजरियात मुझे आपके सामने सरसरी तौर पर बताना है। एक और शख्स जिसने आज हमारे सल्फी नौजवानों को अपना गिरविदा बनाकर रख दिया है, बड़ी मासूम उम्मत है यह सल्फी उम्मत, बड़े जज्बाती नौजवान है सल्फियों के। अगर कोई इंसान दो एक अल्फाज सल्फियत की तारीफ में कह देता है तो वो समझते हैं कि ये अल्लामा सल्फियों के मुअय्यिद हैं, लिहाजा इनकी बात का इकरार कर लिया जाए। बातिल का एक तरीका है कि किसी की बुराई बयान करना हो तो पहले उसकी तारीफ बयान करो, फिर उसकी कमजोरियां सामने रखो। इसी तरीके से लोग हमारे गिरविदा हो जाएंगे। यह बातिल नजरिया है। वो शख्स पड़ोसी मुल्क में बैठा हुआ अली इंजीनियर, मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी हर मस्जिद के अंदर इसके पैरोकार आपको मिल जाएंगे, हर हल्के के अंदर इसके पैरोकार मिल जाएंगे और उसके वीडियोस को शेयर करते नजर आएंगे कि अली मिर्जा का क्या इल्म है, वो तो आसमान इल्म को छूता है। कई नौजवानों से गुफ्तगू हुई तो उन लोगों ने अली मिर्जा को अल्लामतुद्दहर बता दिया। अल्लाह के बंदे, उस आदमी के नजरियात को समझो कि वो आदमी किस नजरियात का मुतहम्मिल है, कैसे नजरियात को जो है इख्तियार किया हुआ है। उसके बहुत सारे नजरियात है, लेकिन चंद नजरियात जो हमारी इस महफिल से मुताल्लिका हो सकते हैं उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, वो हजरत उमर में हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में तफरीक करने वाला इंसान है और तफरीक करते हुए कहता है कि पहली खिलाफत जब पूरी डेमोक्रेसी और एतदाल के साथ तुरुए जमीन पर कायम हुई, वो हजरत अली इब्ने अबी तालिब की खिलाफत थी। और हजरत अली का एक कौल न जाने उसने कहां से सीखा, वो करते हुए कहता है कि अली कहते हैं कि ये तीनों खलीफा अपने सारे के सारे गुनाहों को और अपने जराइम को लाकर मेरे खाते के अंदर डाल लेंगे। अल्लाह अकबर। ये किस जानिब दलालत करती है कि सहाबा के दरमियान डेमोक्रेसी का लफ्ज इस्तेमाल करता है। डेमोक्रेसी कहां पर होती है? अल्लाह अकबर। इसने हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान और अशरा मुबश्शरा, ये सारे लोगों को इसने मातूब कर दिया और हमारे नौजवान समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा अल्लामतुद्दहर है। दूसरी बात, जो मुहद्दिसीन के बारे में वो लिखता है कि मुहद्दिसीन ने कौन सी खिदमत अंजाम दी है, एक मुहद्दिस का तो नाम बताए। मैं इमामों से पूछता हूं कि वो दीन की कौन सी खिदमत करते हुए आए हैं। यह सवाल मुहद्दिसीन पर। ताबईन के बारे में उस इंसान का नजरिया है झूठी हदीसें गढ़ना और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन।
अल्लाह अकबर। जब उससे सवाल किया गया, जब उस आदमी से यह सवाल किया गया कि आपका इल्म इतना मजबूत क्यों है, तो वो कहता है कि अइम्मा अरबा से ज्यादा मजबूत मेरा इल्म है। अल्लाह अकबर। वो आलिम क्या जो अपने इल्म की तारीफ करता हो, वो आलिम क्या जो अपने इल्म की तारीफ करता हो। अपने आप की तारीफ करने वाला शैतान होता है, और अल्लाह ताला ने एक इल्म वाले को दूसरे इल्म वाले पर मुकर्रर कर दिया है। कोई तदबीक इसमें नहीं दी जा सकती। इसने सहाबा की गुस्ताखी की, ताबईन की गुस्ताखी की, और तबे ताबईन की इसने गुस्ताखी की। इमाम इब्न तैमिया और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में इस इंसान का यह नजरिया पाया जाता है कि इनके जिस्म से निकलने वाले नुत्फे की भी तहकीक करना चाहिए कि क्या ये लोग सलफी थे या नहीं थे। नौज बिल्लाहि मिन जालिक। जिसके गिरविदा हमारे नौजवान होते चले जा रहे हैं। ऐसे और भी बहुत से नजरियात इस आदमी के हैं, और ये आदमी बड़े बड़े दावे करना शुरू करता है। ये तो कुछ ऐसे लोग थे जो आलमी सतह पर हैं, इनमें और भी बड़ी फहरिस्त है। वक्त नहीं है कि हम उस फहरिस्त को आपके सामने बयान कर सके। आखिरी बात, मैं अपने मौजू को खींचता हुआ मैं अपने नौजवानों से एक और फितने की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं, जिसकी पैदावार हमारे हैदराबाद से हो रही है, हमारे हैदराबाद से हो रही है। यही नहीं, हमारे मस्जिदों में कई नौजवान इस शख्स के गिरविदा बने हुए हैं, जिसके नाम अहमद जमलुल्लैल, जिसके नजरियात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस आदमी के फितने की सरखुबी करना इंतहाई जरूरी है। मस्जिद अहले हदीस सत्ते दरवाजे में इसके मानने वाले, मस्जिद जुन्नूरैन में उसके मानने वाले, मस्जिद राबिया में उसके मानने वाले, उस इलाके की मस्जिदों में कहीं ना कहीं से इसके फितना मचा रहे हैं, और हमारे नौजवानों को मुतशद्दिद बना रहे हैं, और मनहज सलफ से गुमराह कर रहे हैं। जिसके नजरियात में से चंद नजरियात मैं आपके सामने रखता हूं। रमजान का मौसम आता है तो फिर इसके पैरोकार जवान हो जाते हैं, और लोगों को इज्तिमाई तरावी से रोकते हैं, ये कहते हुए कि तरावी तो 3 दिन है, फिर ये नफिल इबादत है, अपने घरों में करो, इज्तिमाइयत के साथ ये नहीं। अच्छे अच्छे नौजवानों को इसने गुमराह करके रखा है। अच्छे अच्छे नौजवानों को, जो उलमा के साथ उठने वाले, उलमा के साथ बैठने वाले, उन नौजवानों को इसने बरगश्ता कर दिया। और तो और एक बड़ी तादाद को इसने ऐसे पैदा कर दिया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के भी कायल हो चुके हैं। हमने उसको मुनाज़रे के लिए बुलाया, आने को तैयार नहीं था। उसके रद में किताब से लिखा, आने को तैयार नहीं, लेकिन अपनी बात पर वो अड़ा हुआ है कि वो हयात ईसा का इनकार करता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का इकरार करता है। गोया ये यहूदी है, और यही वो इंसान है जो कादियानी नजरियात रखने वाला है, क्योंकि कादियानियों के पास हजरत ईसा वफात पा चुके हैं। मेरे भाइयों, ऐसे नजरियात के लोग आज हमारी सफों के अंदर पाए जाते हैं। यही नहीं, हमारे नौजवानों को इसने दाढ़ियों से बरगश्ता करके रखा। कहा यह दाढ़ी, यह बेतरतीब की दाढ़ी जो तुम्हारी खूबसूरती को जाहिर करती है, यह मस्तून नहीं, बल्कि दाढ़ियों को खूबसूरत बनाओ और मूंछों को तोड़ दो। इनके नौजवान चलते चलते हमने देखा इसके मानने वाले बड़ी बड़ी मूंछें छोड़कर उसको तोड़ देना शुरू कर दिए। बोले कि नहीं, आओ आए तो हमारे साहब से बात करेंगे, और साहब बात करने के लिए तैयार नहीं। और हमारे नौजवान ऐसे अशखास के गिरविदा बन चुके हैं। और एक दो नजरियात जिसको मैं आपके सामने रखूं, हमारे शहर में ब्रदरिज्म का फितना बहुत ज्यादा है। ऐसे ब्रदर जो दीन का इल्म हासिल कर चुके हैं और उलमाए किराम की सोबत में रहकर अगर इल्म हासिल करते हैं तो यकीनन इल्म से इनसे इल्म हासिल किया जा सकता है। लेकिन जो अपने अफकार, अपने नजरियात में मुतहम्मिल होते हैं, ऐसे लोगों से इल्म हासिल करना अपनी तबाही को मोल लेना है और अपने आप को गुमराही में डालना है। मैं ऐसे दो अशखास के दो नजरियात आपके सामने रखता हूं। एक शख्स से सवाल किया गया भरी महफिल में कि मलकुल मौत एक है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बैक वक्त ये किस तरीके से इज्तिमाई तौर पर लोगों की रूहों को कब्ज कर लेते हैं। अगर ये बंदा ये कह देता कि ये सवाल का इल्म मुझे नहीं है, मैं उलमा से रुजू करके कह दूंगा, तो फिर इसकी हक्कानियत के लिए ये चीज बेहतर थी।
लेकिन ये अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहता था। अपने शान इल्मी को जाहिर करने के लिए उसने साहिल से सवाल किया कि क्या आप कंप्यूटर जानते हैं? कहा कि हां। तो कहा कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल डिलीट, यानी किसी को भी कंप्यूटर से हज़फ करना हो, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर दो, एक बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। गोया इसने मलकुल मौत पर इल्जाम लगा कि वो इस तरीके का अमल इख्तियार करते हैं। यह अकीदे की बहस थी, अकीदे का मामला था, मलाइका पर ईमान का मामला था। अगर इल्म नहीं था तो उलमा से रुजू कर लेता, लेकिन ऐसे लोग उलमा के साथ बैठना नहीं चाहते। ये अपनी तौहीन समझते हैं उलमा के सामने बैठना। अब मैं नौजवानों से पूछता हूं, क्या ऐसे नजरियात के लोगों से हम इल्म हासिल करेंगे? ऐसे ही एक और ब्रदर ज़ादे हैं हमारे पास, बड़े शोर शराबे उनके चलते रहते हैं। उन्होंने एक के सवाल में कहा कि इस्लाम में आशिकी भी जायज है और आशिकी की शादी भी जायज है। अल्लाह अकबर, आशिकी भी जायज और आशिकी की शादी भी जायज। अक्लमंदों, पहले लफ्ज इश्क ही हमारे पास जायज नहीं है, हमारे पास तो लफ्ज मोहब्बत है, जो अल्लाह की गैबी नेमत है। अल्लाह ताला जिसके दिल में चाहता है वो डाल देता है। ये एक अलग बहस है। कहा आशिकी भी जायज है और इश्क भी जायज। अब नौजवान बड़े खुश, नौजवान बड़े खुश। अल्लाह अकबर। दलील, उसने हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस भी सुना दिया। कहा हमने दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर चीज कुछ भी नहीं देखा। नौजवान खुश, नौजवान खुश। न जाने ये बात कितने नौजवानों के दिलों में उतर गई होगी। ऐसी ही गुफ्तगू के जरिए से लोग हमें मनहज से बरगश्ता करना चाहते हैं। और एक बात मेरे भाई, एक बात याद रखें, अल्लाह ताला ने शर्म की बात को, हया की बात को, जिनसी मसाइल को अल्लाह और उसके रसूल ने पर्दा ढांक कर रखा। गुफ्तगू की तो किनायों में किया, इस्तिआरों में किया, वजाहतों में नहीं किया। यही ऐसे फितना परवर हैं जिन लोगों ने नंगी फिल्मों से ज्यादा बदतर इन मसाइल को शरई तौर पर पेश करने की कोशिश किया। इनके सबसे ज्यादा फॉलोवर औरतें नजर आती है। अलमुहिम, मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं वो यही बात है, मेरे नौजवान साथियों, तुम्हारे लिए उलमा की जमात है। उलमा की जमात से रहनुमाई हासिल करो, उलमा की खिदमत में आओ, जानुए अदब तय करो। यह नहीं कि आलिम का इज्तिमा में ही तुम आओगे। फुर्सत लो, आलिम से वक्त लो, उसकी खिदमत में जाओ और उससे इल्म सीखो, वरना तुम गुमराह हो जाओगे और तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। आखिर में मैं दो एक बातें अपने अहले इल्म से गुजारिश के तौर पर करना चाहता हूं। ऐ मेरे अहले इल्म, अपने नौजवानों के साथ उठो, अपने नौजवानों के साथ बैठो, आजादाना तौर पर उनसे मुलाकात करो, अपनी मजलिसें कायम करो, अपने अपने इलाकों के नौजवानों को अपने करीब करो, ताकि नौजवानों के अंदर हमारी मोहब्बत आ सके, वो हर मसले में हमसे रुजू कर सके। यह हमारे उलमा का एक कमजोर पहलू है कि वो अवाम के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, नौजवानों के साथ बैठना नहीं चाहते। ऐसे ब्रादर्स और ऐसे फितना मरवरों की भीड़ चढ़ जाते हैं हमारे नौजवान। दूसरी बात, मैं जमात के जिम्मेदारों से अर्ज करना चाहता हूं, जमात की तरक्की यह नहीं है कि मसाजिद बनाई जाए, जमात की तरक्की यह नहीं बिल्डिंगें बनाई जाए, जमात की तरक्की यह है कि हमारे नौजवानों को सलाहियतमंद बनाया जाए, उनको गुमराही से बचाया जाए और ऐसे फितनों का पूरी ताकत के साथ रद्द किया जाए जो हमारे नौजवानों को दीन और मेहनत से इनहराफ करते हैं। कहीं पर हमारे जिम्मेदारों की कोताही का भी नतीजा है कि हम ऐसे लोगों की सरकुल भी नहीं कर सके और हमारे उलमा की कोताही का भी नतीजा है कि हमारे नौजवान उलमाए किराम से दूर होते गए। मेरे नौजवान भाइयों, आइए मेरे मौजू के जरिए से मैं यही पैगाम आपके सामने देना चाहता हूं कि हमारे दीन की असास खालिस दीन है, उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं और यही उलमाए किराम हमें दुनिया की रहनुमाई करने वाले हैं, दीन की रहनुमाई करने वाले हैं। हमारे मसाइल को हम उलमा से रुजू करें, उस आदमी से रुजू ना करें जो आदमी कभी भी दीन के करीब ना आया हो। ऐसी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं,
لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم ان مثالوں کو دیں. لیکن یہ سوچیں آپ اچھا علاج کرانے کے لیے مستند ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, مقدمہ لڑنے کے لیے مستند وکیل کے پاس جاتے ہیں, پھر مستند عالم کے پاس مسائل کو کیوں رجوع نہیں کرتے کہ ایک انسان نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان, اس فارمولے پر آج ہم عمل کر کے خود گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو گمراہی سے بچائے, باطل نظریات سے بچائے, کتاب اور سنت پر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.